Very good morning and welcome. So friends, I do welcome all of you for the discussion here today on the resources of India and especially about the mineral resources I am going to discuss. Okay. Well, in the last session we did discuss something about the energy resources. Today we will look at other mineral resources, particularly metallic mineral. Metallic minerals, there are two major types. One is rich in ferrous, another one is non-ferrous. Ferric and ferrous and non-ferrous metallic mineral you are having. ओके एक में आयरन ओर का आयरन का कंटेंट थोड़ा रहेगा ज़्यादा, एक में नहीं रहता है. इसी हिसाब से मेटालिक और मेटालिक मिनरल और फेरिक और नॉन फेरिक. एनीवे आयोड फेरस जो होता है ना मिनरल्स वो होते हैं आयरन और मैंगनीज, क्रोमियम, निकेल, टंगस्टेन. ओके दे आर फेरस. मैंने कहा मेटालिक मिनरल, metallic minerals, we have the metallic mineral here. These metallic mineral of two types. Metallic mineral are of two types. One which is having iron ore content, another one doesn't have the iron ore. So on that basis we can divide then ferrous mineral, ferrous minerals and non-ferrous minerals. फेरस में मैंने कहा iron ore is the best example here because it has iron content. You have chromium, you have nickel, manganese, tungsten, chromium, nickel, manganese, cobalt, tungsten. These are having iron content. But we have copper, aluminum, tin, lead, gold, etc. Copper, aluminum, gold, tin. ये जो आपकी मिनरल्स है we have also gold हो गया, कॉपर आता, ये लेड ऑल्सो, लेड यू हैव, जिंक हो गया, लेड, जिंक, प्लाटिनम, ऑल दीज मेटालिक मिनरल्स में फेरस मिनरल्स ये सब है, नॉन फेरस मिनरल ये है. वी विल डिस्कस सम ओनली, नॉट ऑल. Iron ore I will discuss. Here we will have copper and of course bauxite we will discuss. These two we will discuss here in detail. Though I will tell you about other minerals also. थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ये दो में जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं. So we need to see that. Now, ferrous and non-ferrous, मैंने कहा है iron ore. Iron ore is found. Iron ore is the most important mineral we have. Iron ore is the most important mineral
you must be knowing about. Iron ore is found in the Precambrian rock. It is generally found with the Precambrian rocks type. Okay, please note down here. Iron ore is generally found with the Precambrian rocks. Iron ore is found in the Precambrian rock. The largest deposit of iron ore, if you look at largest deposit in India, if you will see, it is in different part, of course. In the worldwide largest deposit, we call it like, it is in China. China has the largest deposit. Second, another one, you have the quality wise, if you look at the iron ore are of different types. Please note down here now. Iron ore are generally of 4 major types. 4 तरह की iron ore हैं. Iron ore are of 4 major types. Number 1, the magnetite ore. Around 72% of this ore content metals. Iron content is around 70, मतलब metal content is 72%. Magnetite is black in color, and magnetite ore is found only in few selected areas of India. जैसे, you can note down here, it is found in Karnataka, Bellary and Hospet region of Karnataka. कौन सा एरिया है? Bellary and Hospet, HOSPET, Hospet and Bellary regions of Karnataka, where it is found. Again I am saying HOSPET, Hospet and Bellary in Karnataka, where you will find this Hospet and Bellary. Okay, I hope you are well aware about the Kudremukh and all these. अगर आपको याद है तो वो ही रीजन्स है. सो मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पे, कर्नाटका में हॉस्पेट बेलारी रीजन. इन छत्तीसगढ़ बेलाडीला रीजन, बेलाडीला, and in Jharkhand सिंहभूम रीजन. ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे यू हैव मैग्नेटाइट ओर. बेलाडीला इन छत्तीसगढ़, मैग्नेटाइट ओर, सिंहभूम. सो सिंहभूम ब्रजमड़ा भी है, BRAJMDA, ये उड़ीसा झारखंड बॉर्डर के तरफ. सो दीज आर द रीजन. हियर यू हैव मैग्नेटाइट ओर, यू विल फाइंड मैग्नेटाइट ओर, आयरन ओर इज फाउंड हियर. मैंने कहा 72% तक मेटल रहता है यहाँ. वन ऑफ द सुपीरियर क्वालिटी है ये. ओके, ब्लैक इन कलर, मैग्नेटाइट ओर जिस ब्लैक कलर होता है, ब्लैक इन कलर. मैग्नेटाइट एज सच इज ब्लैक इन कलर, मैग्नेटाइट इज ब्लैक इन कलर ऑलवेज. कर्नाटका ये रीजन्स में मिलेगा. वर्ल्ड वाइड अगर देखेंगे ना, इन द वर्ल्ड, इफ यू लुक एट द डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड, दिस टाइप ऑफ ओर इज डोमिनेंट इन or mostly found in even in China and Russia also. Russia also has magnetite ore. Magnitogorsk in Russia, world's largest magnetite ore center. क्या बोला मैं? Magnitogorsk. Magnitogorsk in Russia, Magnitogorsk. Magnitogorsk in Russia is the largest magnetite deposit
Another one is KMA, that is Kursk magnetic anomaly. The region in Russia, also a major magnetite ore deposit. KM is a deposit here. The mining town है, यहाँ KMA, Kursk magnetic anomaly कहते हैं इसको, KMA. So this is magnetite ore I said. Next one, hematite. Hematite ore. This is the second best quality. Hematite. Most abundant or most common iron ore found in the world. This is India also has a rich deposits of hematite ore. हेमाटाइट ओर में इंडिया में फेमस है हेमाटाइट ओर के लिए. हेमाटाइट ओर इज रेड इन कलर, रेड टू ब्राउन, 60 to 70% metal. Red to brown in color, brown color. They are generally red to brown in color. हेमाटाइट ओर याद रखें, मैंने कहा कि इंडिया हैज अ रिच डिपोजिट. 58% ऑफ टोटल आयरन ओर डिपोजिट इन इंडिया is hematite. More than half of this is hematite. Okay, more than half of this hematite. Okay, mainly found in the ओडिशा, गोवा. ये कहाँ से मिलता है? ओडिशा में मिलता है, गोवा, झारखंड एंड कर्नाटका, दिस रीजन्स. जहाँ पे वो देखिए मैग्नेटाइट और हेमाटाइट दोनों को दोनों कुछ स्टेट में मिलते हैं. मैग्नेटाइट भी हेमाटाइट भी. मैग्नेटाइट इज द सुपीरियर क्वालिटी देन द हेमाटाइट. तो कर्नाटका इज नोन फॉर मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट बोथ. झारखंड ऑल्सो हैज हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट बोथ, बट ओडिशा हैज मोस्टली इट इज हेमाटाइट ओर. नाउ थर्ड वन इज लिमोनाइट. And fourth one is siderite. लिमोनाइट एंड सिडेराइट, ये दोनों को दोनों लोअर क्वालिटी का है. लिमोनाइट येलो इन कलर, येलो कलर. लिमोनाइट इज येलो इन कलर. जनरली इट इज येलो कलर की होता है बिकॉज ऑफ मोर इम्प्यूरिटीज हियर. दिस इज 40 to 60% मेटल कंटेंट. 40 to 60% metal content. In West Bengal, near Raniganj, you will have limonite. आपको बता दूं, कोलफील्ड है रानीगंज में, उसके आउटस्कर्ट में मिला है कुछ जगह पे लिमोनाइट ऑल्सो. लिमोनाइट इज not a superior quality ore.
limonite is not a superior quality ore, you remember. Then you have siderite. It has more impurities, brown in color. Brown, more impurities. Up to 48% मेटल रहता है यहाँ पे कंटेंट में. They are comparatively less, as you know. Here you have mixture of iron and carbon you will get. You will get iron and carbon mixture. Generally you will get this type. Limonite and siderite are not plentifully utilized in India abhi. Okay. So as I just said about this, if I will go for the distribution of all, if I will say the distribution of all the iron ores in India, definitely Chhattisgarh, Goa, Karnataka, Jharkhand, Odisha, these are the states where you have mostly. छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में आपका ये जो है ना, इफ आई विल गो फॉर लाइक स्टेट वाइज रिजर्व्स ऑफ गुड क्वालिटी ओर, मैं बोल रहा हूँ हेमाटाइट और मैग्नेटाइट को मिला के स्टेट वाइज रिजर्व अगर देखेंगे, डेफिनेटली इट इज मोस्टली इफ विल सी ओडिशा, झारखंड, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, 4 स्टेट है. उड़ीसा है द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर. फर्स्ट उड़ीसा है, सेकंड झारखंड है, थर्ड कर्नाटका, फोर्थ छत्तीसगढ़. सो आयरन और रिजर्व में देखेंगे, आयरन और रिजर्व्स, उस पे ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, these are here. ओडिशा, छत्तीसगढ़. ओडिशा है द लार्जेस्ट डिपॉजिट, रिजर्व्स में पहला है ये. इफ यू लुक एट कर्नाटका है सुपीरियर क्वालिटी में, थर्ड में आ जाएगा कर्नाटका. यस, second is Jharkhand, third is Karnataka, fourth one you have your this state called Chhattisgarh. Of course, someone was asking me like from where the source of yours, like कहाँ से लाते हैं आप sources के ऊपर. As you said, Indian Mineral Yearbook is there. Indian Mineral Yearbook 2021, आप देखिएगा. ओके. Here you will get it. हो गया क्या? Somebody requested me for this slide, please. You got it now? Fine. Now आयरन और रिजर्व में पहला ये है, सेकंड झारखंड है. देखिए ये इंडियन मिनरल ईयरबुक पे आप देख लीजिएगा. अगर ये नया अगर आएगा 2020 का मैं डाटा दे रहा हूँ अभी तक जो है 2020 की, मतलब दैट अभी न्यू डाटा व्हेनेवर यू विल गेट यू कैन सी दैट. आप थोड़ा सा न्यू डाटा को देख सकते हैं जब जरूरत पड़ेगा. इंडिया मिनरल राइट. We will see now another point. स्टेट वाइज डिपॉजिट देखते हैं. एज आई टोल्ड अबाउट ओडिशा. ओडिशा में क्या क्या माइन है? इन ओडिशा द मेजर माइन्स आर गोरू,
महिसानी, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़, सुलेईपाट, सुलेईपाट, I hope these three you might be knowing about in Odisha. Bonai, Bonai is in Sundargarh. And these three are in Mayurbhanj. Goru Mahishani, Badam Pahad, Suleipat. And Bonai in Sundargarh. Also there are few area in Keonjhar also. केओंझर डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं ये देखिए, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और केओंझर। इन 3 डिस्ट्रिक्ट यू आर गेटिंग। कभी कभी क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है प्रीलिम में, कभी कभी माइंस का नाम आ रहे हैं, इसीलिए आई हैव गिवन इन डिटेल। गोरू महिशानी, बादाम पहाड़, सुलेपाट इन मयूरभंज, बोनाई इन सुंदरगढ़ एंड केओंझर नियर बाय रीजन, केओंझर itself town they are nearby. You have this type of Sir, why coal and iron ore are found in close proximity? Is it something to do with the Precambrian rock? Aditya is asking. Precambrian rock के साथ कोल का कोई रिलेशन नहीं है, मगर यस आयरन ओर का है। In the Precambrian rock में subsequently when the plant developed or in that region there is vegetation developed and there is faulting. Faulting के वजह से जो regions में जो हुआ है, that is what you got it. What is that? Finally Precambrian rock से सी आपको मिलता है क्या? From the Precambrian rock only you have the iron ore, and coal also you will get only in case of coal कब मिलेंगे? Whenever coal you will find out whenever it has burying of the tropical rainforest area under the faulted zone. Okay, बहुत ही important है ये। Okay, ओडिशा का हो गया ये। I'll go for now another state. Let us talk about Karnataka now. In Karnataka, you know about the Baba Budan Hill, Kudremukh, Hospet, Bellary, Chitradurga, you can see that Hospet, Bellary, Chitradurga, Sandur, Sandur, Kudremukh है, बाबा बुदन ही हो गया, बाबा बुदन हिल, Kudremukh regions we have Baba Budan, this is there. In Karnataka, these are the region where you have mostly you will have the deposits of iron ore, Karnataka. Shimoga district also we have
the Bellary Hospit, Bavabudan Hills, Chitradurga, Shimoga. In the Shimoga regions also you have the deposits of iron ore. In Karnataka, these are the most important places I said. In Karnataka. Let me now move on to the state of, let us say, Jharkhand. In Jharkhand, Noamundi, Gua mine, GUA. Remember, this is Gua is a very important. Kiriburu, Jamda, all these are in Jharkhand. Mining regions these are. छत्तीसगढ़ में अगर जाएंगे, if I'll go to Chhattisgarh now, from here to Chhattisgarh, two most important, one is Bailadila, second one is Dalhi Rajra. Bailadila and Dalhi Rajra, two important mines here. Bailadila and Dalhi Rajra. Okay. Iron ore from Bailadila goes to Visakhapatnam steel plant and also Japan for export. To Japan also. और ये जो आपकी दली राजरा है, राजरा माइन इज नोन फॉर भिलाई स्टील प्लांट. भिलाई स्टील प्लांट. भिलाई steel plant. So we have these Bailadila, Visakhapatnam steel plant in Japan, Delhi Rajra, Bhilai steel plant we have in Chhattisgarh. In fact, this is a very important mine, Bailadila mine here. If I will go for the Goa, Goa में जो Manabam, Shikuram, you have in fact गोवा का एक सबसे इम्पोर्टेंट है, एक मनाबम में, साक्युली में, SAHQUALIM, Shikulim, that is a very important है, क्यूपम है. मोस्टली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गोवा, जो है मारमा गांव से भेजते हैं हम लोग बाहर. इन दिस यू नो बिचोलिम, these mines we usually from here to export to Japan we export. ये इसको बोलते हैं ब्लैक डस्ट भी कहा जाता है. This is like because of its unique characteristics, very good quality of iron ore it is. It is a good quality iron ore. आप ये जो है ना क्रिस्टलाइन होता है वो उसको ग्राइंड करना नहीं पड़ेगा ज़्यादा,
प्रोसेसिंग में इजी हो जाते हैं। दिस इज ए गुड क्वालिटी आयरन ओर हियर, वी एक्सपोर्ट इट। महाराष्ट्र में भंडारा और रत्नागिरी 2 एरिया है। इन महाराष्ट्र, इफ आई गो फॉर दिस महाराष्ट्र, भंडारा and Ratnagiri. If at all in the prelim they are asking you remember these names only. prelim के लिए आपको इतना नाम याद करना पड़ेगा, कहीं क्वेश्चन आ जाए। you can see these mines are located, you can find out that, like in the NCERT book it is given to some extent, you can see that there are few regions where you have आयरन ओर इज रीच हियर। मैं 2 चीज को आपको याद करना पड़ेगा, वन इज आयरन ओर, अदर वन इज कोल। बेस्ड ऑन दिस, बिकॉज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वी आर गोइंग टू डिस्कस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वी हैव टू नो अबाउट ईच ऑफ दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मैंने कहा बॉक्साइट पर जाएंगे। बॉक्साइट विल फाइंड आउट द लार्जेस्ट डिपॉजिट हियर इन द वर्ल्ड, इफ विल सी दैट इट इज इन द huge deposit in Australia. You have in Australia you have huge deposit of bauxite. It is formed due to lateralization of the rock of the Cretaceous period. Develops due to the lateralization of the rocks of Cretaceous period. If you remember, I told you lateralization is a process of leaching and subsequent accumulation of oxides of iron and alumina in the upper part. आपको याद होगा। Okay, didn't you have written this? Please. I am talking about the states you are requested to see from the NCERT map is also given. घर में है आप लोग, सबके पास होगा NCERT। NCERT में दे रखा है सभी डिपॉजिट के बारे में। And bauxite develops due to the lateralization of the rocks of the Cretaceous period, I said. Bauxite developed due to this. Now, I told you lateralization process, I have already said. Lateralization process में बताया था मैं। Lateralization, leaching of the minerals from upper layer and accumulation of oxides of iron and alumina and aluminium component in its upper part. Leaching of the minerals from upper layer and accumulation of oxides of iron aluminum component in its upper part. ये प्रोसेस को बोलते हैं लेटराइजेशन। आपको याद होगा, ये मैं बोल रखा था। सो लेटराइजेशन में डेफिनेटली बॉक्साइट फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है लेटराइजेशन में। Where you will get in India, if you will see in India बॉक्साइट का कहाँ कहाँ मिलता है,
तो सबसे ज़्यादा है उड़ीसा में। उड़ीसा है द लार्जेस्ट रिजर्व्स। द बेस्ट एंड द मोस्ट कंटिन्यूअस रिजर्व जो है ये है आपका लार्जेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी of bauxite is found in KBK region of Odisha. So you have KBK is Kalahandi, B is Balangir, and K again is कोरापुट। दिया 3 डिस्ट्रिक्ट है, उन्हीं के नाम पे है KBK। कलाहंडी में जो डिपॉजिट्स है अगर देखेंगे, इन कलाहंडी द डिपॉजिट्स आर इन नंबर 1 वी हैव नियमगिरी hills, near Lanjigarh, बलांगीर में गंधमार्दन हिल, near Bargarh. Now Bargarh is a separate district here, and in this case कोरापुट पे पंचपटमाली, नियर देवमाली। यहाँ पे है आपका वेदांता अलुमिना, यहाँ पर नंबर 2 दे देते हैं। नंबर 2 इज टिकरी, नियर रायगढ़। ये है आपका वेदांता अलुमिना, दिस इज बाल्को, here it is taken by Vedanta Alumina, this is by the Balco, Panchpatmali by Nalco, and Tikri by the Utkal Alumina. ये सब इनका कैप्टिव माइंस हैं। जैसे मैंने बताया मैंने आपको, these are the captive mines of these companies also, very much under controversy also these regions. Not down here, Niyamgiri, Gandhamardan, पंचपटमाली, टिकिरी,
तो आपका ये जो मैंने कहा वेदांत एल्यूमिना, ये तो कंट्रोवर्सी में था, आपको बताया था शायद मैं पहले कि दिस रीजन वाज अंडर कंट्रोवर्सी, नियमगिरी रीजन्स. द पीपल हियर आर नोन एज द पीपल इनहेबिटेड बाय which people? Dongoria Kond. You remember this? Dongoria Kond tribe. These people worship this Niyamgiri hill. They call this as the Niyam Raja. ये लोग बोलते थे कि ये हमारा राजा है, our king is here, Niyam Raja. So these people, they protested against this mining of this alumina का, आपको पता होगा ये. So the capacity of this plant, in fact mining का जो है ना यहाँ पे घटा दिया गया, mining total allotment जो था घट गया वो. एंड गंधमार्दन हिल जो है नियर बरगढ़ है, ऑफ बाल्को, मैंने कहा दिस इज नाउ शट डाउन, नो मोर वर्किंग, बिकॉज ये गंधमार्दन हिल है ना, दिस इज रिच इन डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट, सो पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस. अच्छा, पंचपट माली ये चल रहा है, इट इज द लार्जेस्ट माइन इन इंडिया. पंचपट माली कोरापुट पे है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको की ये माइन है. टिकिरी नियर रायगढ़, रायगढ़ इज नाउ ए न्यू डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कोरापुट इटसेल्फ. सो यहाँ पे उत्कल एल्यूमिना एक नया ये कंपनी का माइनिंग राइट्स है, दे आर एक्सप्लोइटिंग द रिसोर्सेस. सो एज आई जस्ट सेड अबाउट दीज, यू नो, दीज आर सम ऑफ द रीजन्स वेर एवर वी हैव बॉक्साइट इज फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया. ओके, पंचपट माली, गंधमार्दन. इन तेलंगाना, इन मध्य प्रदेश, इन झारखंड ऑल्सो. इन झारखंड यू विल गेट इन पलामू एंड लोहारदगा रीजन. ठीक है, हो गया. इन झारखंड पलामू, लोहारदगा, झारखंड की पलामू एंड लोहारदगा रीजन से दिस. मैंने कहा झारखंड, लोहारदगा एंड पलामू. दूसरा जो है अनदर स्टेट इफ विल गो फॉर, झारखंड में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं. और यू हैव मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, यू हैव कटनी, जबलपुर, अमरकंटक, शहडोल. These regions also have this, मध्य प्रदेश में. Okay, can you see this? कटनी, जबलपुर regions, बरगावा हिल, अमरकंटक, शहडोल. These regions also has deposits of this type of, you know, मध्य प्रदेश में ये रीजन है जहाँ पे कि दो स्ट्रिप का बताया मैंने आपको, दो रीजन से जहाँ मिलते हैं. इन तेलंगाना ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यू विल फाइंड आउट, बट इट इज नॉट दैट न्यूमरस. छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा एरिया है ना, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर,
done. So these are the region here you have. Bauxite is found in all these region, as I said. State-wise largest producer is now Odisha, and fastest growth also will have in another one. Chhattisgarh, Odisha regions is now developing very well on this. Odisha has 51% of total reserve, production wise around 65%. Bauxite पे Odisha has 51% of total reserve of India. Total reserves of India. 51% of total reserves of India you have in Odisha. Then you have around 65% of total bauxite production of India. ओडिशा. सो लीडिंग है यहाँ पे. दूसरा प्रोडक्शन में झारखंड है, मगर अभी जो है ना रिसेंटली, अच्छा डिपॉजिट में आंध्र प्रदेश है सेकंड में. डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट और रिजर्व्स के हिसाब से सेकंड इज आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? उड़ीसा से सटा हुआ जो जगह है ना, विजयनगरम विशाखापट्टनम एरिया. विजयनगरम विशाखापट्टनम regions of Andhra Pradesh has this. Around 16% is here, 16. शायद आंध्र प्रदेश नहीं करा है ना. ओके, आंध्र प्रदेश से लिख देता हूँ. इन आंध्र प्रदेश we have विशाखापट्टनम. विजयनगरम, श्रीकाकुलम, ये रीजन जो ना आंध्र प्रदेश में यहाँ पे है. मैंने कहा ये 51% टोटल रिजर्व है. ये 16% ऑफ इंडिया रिजर्व यहाँ है आंध्र प्रदेश में. ये रिमेंबर दिस सच एन इम्पोर्टेंट वन. Balco company shut down now and sell this share to Baveda. Yes, you are right, correct, you are absolutely correct. So ये जो इसीलिए तो झारखंड छत्तीसगढ़ का जो प्लांट है बाल्को का, इट इज अंडर नाउ वेदांता. Is there a regional schemes between eastern and western Odisha due to concentration of resources in the western Odisha and capital benefit getting in the eastern Odisha because of cultural difference? See that this differences now is no more what it was earlier. Eastern and western part of Odisha का जो differences था, that is now mitigated to a greater extent. Though there is a demand for separate state of western Odisha, coastal state is going on. Okay, coastal KOSHL, coastal state demand is now ignited again because of this unequal development, no doubt. But I think resource mobilization is now, it is there. In Jharkhand, Gumla and Ranchi, yes it is there. Gumla and Ranchi Jharkhand में है. अभी नया mines, new discovery. See what happened, you know, our survey is not satisfactory, I think, because we got to know about these huge reserves of this one, the deposits in Andhra and Odisha, Chhattisgarh, this belt, only when some of the Australians pointed out. हम लोगों को पता नहीं था. कुछ ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट ने बताया कि इधर पे है.
तो हमारा सर्वे में आई थिंक वी नीड ए प्रॉपर सर्वे अगेन ऑन दिस. There are regions where you have huge deposit maybe. Recently there was Andhra bauxite mining dispute. It is there. Mining का तो सभी जगह पे dispute है. In Odisha also, as you know, tribal people and the people of the different region, they are protesting because of the pollution, because of the change in the land use pattern, because of a lot of such type of problem. Mining versus development is a major issue now also. होप यू गॉट सम आइडिया नाउ अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन. आपने जो पूछा, आई होप यू गॉट इट. अब देखिए, आंध्र में जैसे झारखंड अगर देखेंगे, झारखंड रिजर्व कम है, गुजरात में उससे ज़्यादा है. 9% इन गुजरात, 6% इन झारखंड रिजर्व वाइज. गुजरात में खेड़ा रीजन्स, देयर आर फ्यू स्मॉल रीजन्स वेयर यू हैव डिपॉजिट्स ऑफ दिस. ओके, बट in production wise, Gujarat, of course, production wise also it has better as compared to Maharashtra or other state. Very small deposition other state. इतना ही याद रखो, ज़्यादा नहीं करना है हमें. You have like गुजरात में जामनगर, कच्छ, जूनागढ़, द्वारका, all these regions are there in Gujarat also. Not very important. आप ये दो एरिया ही याद करिए और नो नॉट नीडेड फॉर. यू आर टॉकिंग अबाउट गुजरात. चलिए गुजरात का बात कर लेते हैं. चलो ठीक है. यू आर आस्किंग अबाउट गुजरात. सो इन गुजरात यू हैव जामनगर. वेरी इंपॉर्टेंट इज जामनगर. जामनगर कच्छ रीजन जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है. जामनगर, कच्छ, द्वारका, खेड़ा, आई सेड. ओके, सो आई सेड जामनगर, कच्छ, खेड़ा. ये जो रीजन्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये गुजरात की खेड़ा है, पोरबंदर है, द्वारका है. द्वारका, पोरबंदर, ये सब जगह पे है. मगर आपको बताऊं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे अभी. दैट्स व्हाई आई वाज नॉट सेइंग. यू आर टॉकिंग अबाउट छत्तीसगढ़. सरगुजा है. JK Nagar was one of the oldest one, my friend. Bauxite नहीं है, aluminum पे के, one branch of Balco is our JK Nagar, West Maharashtra shut down. Yes, this was an aluminum plant. Yes, I'll discuss about aluminum industry, so at that time we'll see why and what is there, बहुत important है ये इसके लिए, बहुत ज़रूरी भी है इसके लिए. ठीक है. सो आपको जैसे बताया, इज लाइक दिस इज हियर इज द रीजन्स. नेक्स्ट चलते हैं कॉपर को. ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखना है. कॉपर इन योर डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. कॉपर, in case of copper, all these things are given here in your booklet also. कॉपर में सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉपर फाउंड इन, अच्छा, कॉपर आर जनरली फाउंड इन द क्रिस्टलाइन कडप्पा एंड आरावली स्ट्रक्चर. क्रिस्टलाइन, कडप्पा एंड Aravali rock structure.
crystalline Kadapa and Aravalli rock structure. There you will find out this. Okay, copper are found in these regions. Copper, as I said, cuprite is the ore, chalcopyrite is the ore. उस पे ना किस फॉर्म में आता है? क्यूप्राइट एंड chalcopyrite बताया था मैं आपको, याद होगा. These are the form in which you usually get. Now this copper is found in different part. मैंने कहा copper is best quality. जैसे राजस्थान is a very important one. Rajasthan best quality of copper. Then MP, then Jharkhand. These three states you must know. You must know about these three states. About these three, okay. Rajasthan, Jharkhand, and you have your regions. Let us see, Rajasthan, you have the best quality of ore, I told you. Copper ore, Rajasthan. Mandhan Kundan. Mandhan Kundan. मंधन कुंदन नाम सुना था क्या? इन झुंझुनू रीजन्स, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, मंदन कुंदन. Okay, you have in Rajasthan, I said Mandan Kundan, झुंझुनू district. खो धरीबा in Alwar region. खेतरी कर दो. मंधन कुंदन इन खेतरी, दिस रीजन्स ऑफ मंधन कुंदन, दिस रीजन्स. माइंस का नाम है. मध्य प्रदेश में मलांज खंड, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट यू हैव मलांज खंड, मलांज खंड इन बालाघाट. Huge deposit you have. Malanj Khand in Balaghat in Madhya Pradesh. And if I'll go for this one, Jharkhand, Moshabani mine, Sonamakhi, Rakha, Moshabani, Sonamakhi, Rakha. All these mines in Jharkhand, they are very well known for this. झारखंड की ये पिपला गांव कुछ एक है, घाटशिला यू हैव, घाटशिला. झारखंड की ये सब रीजन्स में बहुत ही कॉपर का अभी जो है ना बहुत अच्छा खासा डिपॉजिट जो है ना माइनिंग भी चल रहा है यहाँ पे. ओके, होप यू गॉट इट. सिंहभूम रीजन्स पे, झारखंड पे मोस्टली आप याद रखें, ये सब रीजन जो ना सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एरिया झारखंड की, दैट रीजन यू हैव मध्य प्रदेश वेल नोन. स्टेट वाइज कॉपर रिजर्व्स जो है ना राजस्थान में अभी भी ज़्यादा है, झारखंड में कम है. बट प्रोडक्शन वाइज मध्य प्रदेश 53% प्रोडक्शन, कॉपर प्रोडक्शन इफ यू सी 53, more than half of this is now in
MP 53% of total production. Total production of India 53% because it is available in the, you don't have to go for deep bore mining, ऊपर ही मिल जाएंगे आपको यहाँ, because the minerals are found in the upper surface itself. You don't have to go deeper. ऐसे ही, I hope you got it now. These are the regions. Now gold जनरली मैंने कहा था कल आपको टाइप ऑफ डिपॉजिट में, गोल्ड इज फाउंड इन वेन, फाउंड इन क्वार्ट्ज वेन ऑफ शिस्ट रॉक, फाउंड इन क्वार्ट्ज वेन ऑफ शिस्ट रॉक्स इन धारवाड़ regions, धारवाड़ structure, धारवाड़ structure. आप देखिए क्या लिखा है, क्वार्ज वेन ऑफ शिस्ट रॉक्स इन धारवाड़ स्ट्रक्चर. सो क्या है ये? धारवाड़ इज ए वेरी ओल्ड रॉक, प्री कैम्ब्रियन रॉक. Where there are faulting may have taken place, that's why we have sandstone developed there. Sandstone क्वार्जाइट बन गया, और शेल जो था अगर कहीं पे तो शिस्ट बन गया. ये सब के साथ साथ बने हुए हैं वेन डिपोजिट है ये. कोलार गोल्ड माइन, यू नो इट, ओके. कर्नाटका में कोलार गोल्ड माइन, कोलार गोल्ड माइन है ना कर्नाटका में, कोलार गोल्ड फील्ड. अनदर वन इज हट्टी गोल्ड माइन. दो है. ये चैंपियन सीरीज है, ओकले सीरीज है. ये है चैंपियन सीरीज, ओकले सीरीज, चैंपियन सीरीज और ओकले सीरीज. मैंने कहा गोल्ड चैंपियन सीरीज, चैंपियन सीरीज क्या होता है? चैंपियन कोलार डिस्ट्रिक्ट में, हॉटी इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट, ओकले सीरीज. आपको बता दूं, ये जो डेवलपमेंट हुआ था ना, जो जियोलॉजिस्ट हु हैज ऑल गिवन दिस, लाइक यू नो, ओकले सीरीज रॉक टाइप, जो माइनिंग का जो रॉक मिला, डिस्कवरी हुआ, एंड दे टॉक्ड अबाउट दिस, who discovered this in the name of different geologists and the rock type found in different region, we have named it. याद रखें, प्रीलिम में आते हैं कि चैंपियन सीरीज कौन सा मिनरल मिलता है? गोल्ड है. कहाँ मिलते हैं? कोलार में, ओकले, हॉटी. ओके, ऑल दीज आर इन गोल्ड. गुजरात नहीं, ये क्या बता रहा? All these are found in where it is? धारवाड़ सीरीज, धारवाड़ स्ट्रक्चर है. All these are in कर्नाटका. My friend, this is in कर्नाटका. कैसे आप गुजरात बोल रहे हो? कर्नाटका, प्लीज. All these are in कर्नाटका. कर्नाटका में मिलता है ये. कर्नाटका, हट्टी is in रायचूर, Kolar, these two gold fields are there. Even in Andhra Pradesh also you will find out Ramgiri gold mine in Andhra Pradesh. We have Ramgiri gold mine. क्या बोला मैं?
रामगिरी gold mine in Anantapur district. Anantapur district of Andhra Pradesh. Ramgiri gold mine in Anantapur district of Andhra Pradesh. अनंतपुर में रामगिरी गोल्ड माइन यू आर हैविंग. ओके. I told you gold also found placer gold deposit in the Jharkhand's which river is there? Jharkhand and Odisha Subarna Rekha river. आपको one thing, a very interesting question I got from one of your friend asking that what type of condition is responsible for the development of the gold? Yes. माय फ्रेंड, चैंपियन और ओकले सीरीज जो होते हैं ना, ये धारवाड़ रॉक जो है, जो बहुत पुराना रॉक है. कैन यू लुक एट योर एटलस? धारवाड़ रॉक इज देयर प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन एंड प्री कैम्ब्रियन रॉक लिखा है ना, धारवाड़ एक लिखा होगा. उसी टाइम पे कुछ जगह पे ना, जैसे कि अलवार सीरीज, छिपली सीरीज, सिंहभूम सीरीज, रियालो सीरीज, डिफरेंट टाइप, डिफरेंट जगह का नाम को लेके या द बेस्ड ऑन द जियोलॉजिस्ट हु वाज इन्वॉल्व, वी हैव गिवन द नेम ऑफ द रॉक. ओके, सो इट इज लाइक दैट. सो जो धारवाड़ रॉक है, चैंपियन रीफ बोलते हैं, REEF, चैंपियन रीफ. कोलार गोल्ड फील्ड का चैंपियन रीफ है. रीफ क्या होता है? REEF, डिपोजिट ऑफ मिनरल्स. टू सिंप्लीफाई द थिंग्स आई कैन से दिस इज ए टाइप ऑफ रॉक. दिस इज द नेम ऑफ ए टाइप ऑफ रॉक स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकली डेवलप रॉक स्ट्रक्चर. ओके, हम लोग ये जो है ना, ओकले सीरीज हो गया, चैंपियन सीरीज हो गया, ये प्रीलिम में आते हैं कि कौन सा सीरीज में कौन सा मिनरल बने हैं. समटाइम्स दे आर आस्किंग. सो कोलार जो है ना, गोल्ड जो है ना, इंडिया में गोल्ड एक तो कोलार का चैंपियन सीरीज का है, हर्टी का है ओकले सीरीज. दीज आर अ टाइप ऑफ रॉक वी हैव नेम्ड बेस्ड ऑन इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. आपने जो बताया किस कंडीशन में बनते हैं ये, लेट मी टेल यू. There was this Archean rock has a faulting हुआ. आर्कियन रॉक का इस रीजन में फॉल्टिंग हुआ, उसके अंदर जो है ना सेडिमेंटरी डिपॉजिट रहा. सेडिमेंट कहाँ से आए ये सब? ऑल दिस फ्रॉम दिस प्री कैम्ब्रियन रॉक्स ही हो जो सेडिमेंट आके रहे. जब ये आपको जैसे बोला मैं, सैंड जो हुआ था, सैंड प्रेशर के वजह से क्वार्ज बन गया, क्वार्जाइट. तो साइड जो है ना क्वार्जाइट की ही जो है ना फॉल्टेड प्रोफाइल है. क्वार्जाइट रिच मटेरियल्स आर देयर. एंड सिस्ट क्या होता है आपको पता है? ग्रेनाइट से नीस होता है, नीस से सिस्ट होते हैं, और सेल से सिस्ट भी होते हैं. तो सिस्ट इज ए मेटामॉर्फिक रॉक बिकॉज ऑफ मोर प्रेशर. मेटामॉर्फिक रॉक वॉट एवर इट मे बी, faulted line के बगल में at the margin of this there are metamorphic rock. Inside this may have some igneous rock, the material जो है ना eroded होकर रहा,
In that you have, in the igneous rock we have gold particles are there. That gold particles may got accreted there, धीरे धीरे accumulation हुआ होगा. So there are a lot of things, you know, associated with this. Now a बहुत बढ़िया, one of your friend is asking, in recent news geologists say that Bihar has got the largest gold deposit which are still to recover. Is it true? Yes, हमारा जो ये जो रॉक सीरीज जो है ना, ये माना जाता है बिहार में भी है, बिहार का सिंहभूम एरिया में. If it is of same type of rock, if it is there, there is a great possibility of presence of gold in these regions. कर्नाटका गोल्ड माइन क्लोज होने का मेजर कॉज है कि ये बहुत डीप हो गया. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, माइनिंग कॉस्ट इज टू हाई. दैट वाज द मेजर कॉज. कंट्री वाइज रैंकिंग ऑफ दिस मिनरल्स प्रोडक्शन, डू यू थिंक इट इज नीडेड? अगर ये सब नीडेड है, आपको चाहिए तो बोलो, मैं रैंकिंग का लिस्ट दे दूंगा. क्लास में क्या कराएं उसको, ठीक है. इफ यू फील लाइक विल गिव द लिस्ट ऑफ दिस. वो आपको कंट्री का जो है ना कुछ ही मेजर जो है मैं बता दूंगा, बट विल सी दैट. लेट मी नोट इट डाउन, आई विल गिव यू देन इफ यू नीडेड. क्वेश्चन नहीं आ रहा है बट स्टिल वी शुड नो. एक का हो सकता है बिकॉज ऑफ द बैटरी का और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा डिमांड हुआ है. सो देयर इज ए मिनरल रिलेटेड विद बैटरी, यू नो इट, कौन सा बोल रहा हूँ. दैट मिनरल कैन बी आस्क्ड, प्रोडक्शन में हो सकता है, दैट कैन बी आस्क्ड. सो वी कैन सी सिलेक्टेड मिनरल्स का हम रैंकिंग कर देंगे. इन राजस्थान नियरेस्ट पोर्ट वेयर कॉपर आर इंपोर्टेड. राजस्थान में कौन सा पोर्ट है बताओ, विच पोर्ट इज देयर? ऑलवेज फ्रॉम राजस्थान का ऑमलैंड जो हो गया, दैट इज आपको नावाशेवा पोर्ट, यू नो इट नाउ. Earlier it was Bombay, now it is Rajasthan. जो उससे if you look at that, you have like, you know, in Gujarat the ports are there. Kandla port also was known for gold and copper. कॉपर के लिए बहुत फेमस. वो आप मीडिएवल टाइम का बात करेंगे तो मुंबई रहेगा. कॉपर इंपोर्ट के लिए ये क्वेश्चन आया था क्या? अगर आया है तो कांडला पोर्ट होगा वो. प्लीज, व्हाट इज चैंपियन सीरीज? आई होप यू गॉट इट. टाइप ऑफ रॉक स्ट्रक्चर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ गोल्ड डिपॉजिट. यू हैव ओनली मेटामॉर्फिक रॉक एंड फॉल्टिंग चाहिए. चैंपियन एंड ओकले सीरीज आ टाइप ऑफ रॉक है ये. ओके. इन रिसेंट न्यूज आप बता, कर्नाटका भारत गोल्ड माइन. सर, इज एनी गोल्ड माइन नियर सरना रिवर और सोन रिवर? यस यस, इसलिए तो स्वर्णा रिवर बोलते हैं. सोन गोल्ड माइन नहीं है, उसका सैंड में मिलते हैं. सो गोल्ड इज ऑल्सो फाउंड, लिखो, ऑल्सो फाउंड प्लेसर गोल्ड डिपोजिट. अरे प्लेसर गोल्ड डिपोजिट्स आर फाउंड, प्लेसर गोल्ड is found from the sands and clay of Subarnarekha, or we have Son river. Subarnarekha and Son river. Yes, we are getting this. ये नदी से मिलते हैं गोल्ड. एंड आपको बता दूं, लद्दाख जो है ना, लद्दाख में जब फ्रॉम तिबेतियन प्लेटू व्हाइल द रिवर इंडस इन लद्दाख, व्हाइल इट कम्स टू लद्दाख, ऑल्सो हैव प्लेसर गोल्ड डिपोजिट. सुवर्णरेखा, सोन, इंडस. सुवर्णरेखा in Jharkhand mostly. Okay, so you have like this region. सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है ना उत्तर प्रदेश की, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, दैट रीजन वी हैव डिपोजिट ऑफ सोन रिवर एट सोनभद्र.
in Uttar Pradesh, Subarnarekha in Jharkhand, whereas in Ladakh. These regions where placer gold deposit you will find some section only. Is Sonbhadra a gold reserve? No, Sonbhadra is a district where traditionally people used to have the gold from this region. Okay, gold from this region. A questions are in the world deposit of copper कहाँ मिलते हैं कॉपर की? You want the deposit of copper in different part of the world, where you have, in which regions of the world you have most copper deposits are there. कॉपर आपकी बुकलेट में शायद हम लोग दे रखे हैं, बट चिली, CHILE, चिले इज नोन फॉर कॉपर. लार्जेस्ट डिपोजिट इन द वर्ल्ड इज चिले. चिले की चिक्विकामाता इज द लार्जेस्ट कॉपर माइन इन द वर्ल्ड. ओके, चिक्विकामाता चिले की है, सबसे बड़ी कॉपर माइन यही है. You asked me, so let me answer it to you. Like first is Chile, Chiquicamata, world's largest copper mine. Antofagasta, another, the Chiquicamata, nearby another one is Antofagasta. Another mine is Antofagasta. Also in Chile, known for copper. एक पोर्ट भी है छोटा सा, चिक्विकामाता एंटोफागास्टा. ठीक है. और आपका कनाडा में, कनाडा का सडबरी माइन इज नोन फॉर निकेल एंड कॉपर, दोनों के लिए फेमस है. निकेल भी होता है एंड कॉपर भी होता है. कॉपर जहां मिलेगा, लेड और जिंक भी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं. लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट इन द वर्ल्ड जोहान्सबर्ग के पास है, साउथ अमेरिका में है. लार्जेस्ट गोल्ड. अरे तो गोल्ड के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है भाई, बहुत गोल्ड के ऊपर पूछा आपने हैं. सो मैं कहूँ लार्जेस्ट गोल्ड डिपॉजिट इट इज इन साउथ अफ्रीका एंड ऑरेंज रिवर के वैली में है. जोहान्सबर्ग नियर बाय वी हैव द रीजन्स ऑफ huge gold deposit in these regions, gold. Okay. I hope it is clear to all of you on this. ओके, गोल्ड के बाद कहाँ चलेंगे? सिल्वर. ओके, लेट अस लुक एट द सिल्वर डिपॉजिट्स इन इंडिया. अर्जेंटीन सिल्वर डिपॉजिट. Silver is found in different regions where you have silver जहाँ मिलेगी, found in a mixed form, जिंक लेड के साथ कॉपर, जिंक लेड कॉपर, जिंक लेड कॉपर सिल्वर, ये सब एक साथ मिलते हैं, मोस्टली एसोसिएटेड विथ ईच अदर. यू विल फाइंड आउट. ओके, मिक्स्ड विथ द ओर ऑफ ऑल दीज you have. That's why you'll find out this type of most of the at present Rajasthan is mostly produces silver. Silver is most in राजस्थान. सो आपको बताना चाहूँगा राजस्थान में जैसे कि रीजन्स ऑफ जवार माइन, Jawar mine near
उदयपुर इन राजस्थान। ऑस्ट्रेलिया में ह्यूज रीजन्स है ना, ऑस्ट्रेलिया हैज ह्यूज रीजन्स वेयर यू हैव डिपॉजिट्स ऑफ दिस। माउंट ईजा का नाम सुना होगा, दैट रीजन्स। ओके सर, एनी गोल्ड माइन फाउंड नियर कृष्णा रिवर? श्री कृष्णा के पास अनंतपुर रीजन जो है वो ये है, कृष्णा के पास और क्या रहेगा? अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश यू हैव, नो अदर एरिया। व्हाट द मैग्नेटिक हिल ऑफ लद्दाख? व्हाई डज द बिहेव लाइक ए मैग्नेट? चेक इट आउट व्हाई इट इज, बट यस मैग्नेटिक इन लद्दाख इज देयर। ओके, फाइंड आउट, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर देयर, बट ये इसका कोई कॉन्टेक्स्ट में भी नहीं है, सो विल सी मैग्नेट हिल क्या है, आगे देखेंगे टाइम अगर होगा। एक चीज है, जावर माइंस नियर उदयपुर इन राजस्थान, एज आई सेड 99% ऑफ द सिल्वर इन इंडिया दे आर फ्रॉम दिस वन। 99% जो सिल्वर प्रोडक्शन इज फ्रॉम हियर ओनली, जावर माइंस में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान HZL का वहाँ पे ही जिंक के साथ साथ ही मिलता है सिल्वर भी वहाँ पे। सो दिस इज हियर। नाउ कमिंग टू जिंक, अच्छा सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, और क्या है? डायमंड। ओके चलिए डायमंड पे देखते हैं। डायमंड, डायमंड इज ए मेटामॉर्फिक रॉक एज यू नो फ्रॉम द ग्राफाइट। ग्राफाइट से क्या बोलता है? डायमंड होते हैं, बिकॉज ऑफ मेटामॉर्फिज्म। Metamorphism leads to transformation of this to diamond, graphite to diamond. Metamorphism is the cause here. The most important area is Panna, no doubt. I have already said about this. Panna in Bundelkhand, Bundelkhand of Madhya Pradesh has diamond deposit because of the geological causes which is responsible for pressure, exertion of pressure from both sides. This is the major cause here, Panna. Okay, Madhya Pradesh. We have also in Andhra Pradesh, we have Krishna River Basin, you have diamond you are having, Krishna Basin में मिलता है, अनंतपुर में मिलता है, कुर्नूल में, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, अनंतपुर, कृष्णा वैली, कृष्णा river valley also have diamond in some region in Andhra Pradesh. You will find. Now another one is mica. Mica is very important for us. For exam point of view, let us see. Mica is found in which all regions of India? Mica is a sedimentary rock. It is a sedimentary associated with sedimentary rock, mica mostly. In fact, they are found as sheets in the igneous and metamorphic rock. Found as sheets of igneous and metamorphic rocks. बहुत इंटरेस्टिंग है. They are found as sheets in. Found as sheets in होगा ना, sheets in igneous and metamorphic rocks. तो यानी कि igneous और metamorphic rock के बीच में ये आपको, और igneous rock की लेयर्स के अंदर होगा
इग्नियस रॉक में ही रहेगा इंक्लूडेड होके, या मेटामॉर्फिक रॉक में होंगे ये। दे आर India has around 60% of the mica of the world. Only India has, I said, 60% of the world's total deposit. 60% of world's known deposit is in India. So, mica, there are different type, in fact. व्हाइट माइका एंड दिस ब्लैक माइका, लाइट पिंक माइका, बहुत सारे टाइप का है। बट झारखंड इज नोन फॉर दिस, कोदरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, झारखंड पहला है। झारखंड में कोदरमा, गिरिडीह, झारखंड इज नोन फॉर माइका। Kodarma is very famous, Giridih is the second most, and third is Hazaribagh. These are the regions here. Jharkhand is known for this type of minerals, well known for this, Jharkhand. Second state is you have, अच्छा कोदरमा में रूबी माइका और व्हाइट माइका इज वेरी फेमस। कोदरमा का रूबी और व्हाइट माइका, इसको बोलते हैं कोदरमा की रूबी और व्हाइट माइका, वेरी फेमस है कोदरमा की। ओके, द सेकेंड इंपॉर्टेंट डायमंड, यू कैनॉट सी, वुड नॉट सी दैट्स, प्लीज लुक एट हियर। Mica is a mineral. Mica is not a rock found with a sedimentary rock. मैंने कहा कि ये मिला होता है सेडिमेंटरी, मगर वो दोनों देखो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक के साथ सेडिमेंटरी प्लेटफॉर्म में रहते हैं ये। ओके, लीड, माइका, लीड चाहिए, मैंगनीज चाहिए, ओके ठीक है। So I said about this, आंध्र प्रदेश में ये रीजन्स हैं where you have mostly will get this। आंध्र प्रदेश में माइका इधर होता है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? कुर्नूल, अनंतपुर रीजन्स बोला मैंने, इन पन्ना, मध्य प्रदेश डायमंड के लिए है। बट ये झारखंड में मैंने कहा इट इज मोस्टली फाउंड। बिहार में गया जो रीजन है, नवाड़ा गया रीजन्स, यू नो दे आर नोन फॉर एडिशन टू कोदरमा। बिहार में गया, नवादा, दिस रीजन वी हैव, बिहार की वेरी फेमस, बिहार गया नवादा रीजन्स। थर्ड इन राजस्थान यू हैव जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा रीजन्स हैं माइका। राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, this is here is, it is mostly found. Some of you are asking for the lead and manganese. Okay, first I'll go for lead. लेड की ओर का नाम है गलीना। ओके, इज इट ओके? पहले बना लो। लेड, LEAD, लेड इज फाउंड विद द एज यू नो सेडिमेंटरी रॉक नोन एज गलीना बोलते हैं ना। चलिए हो गया। लेड, गलीना और होता है generally found with the sedimentary rocks। सेडिमेंटरी रॉक के साथ मिलता है ये,
गलीना की ये यूजुअली विद द सेडिमेंटरी रॉक विल फाइंड आउट जहाँ पे माइका होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है ये रीजन्स पे। एनीवे सेडिमेंटरी रॉक के साथ यहाँ पे मिलते हैं। यू हैव लाइमस्टोन अगर है, सैंडस्टोन अगर है तो उसके साथ भी ये मिलते हैं, लाइमस्टोन सैंडस्टोन, लाइक लाइमस्टोन सैंडस्टोन, ये सब अगर है, लाइमस्टोन सैंडस्टोन अगर है तो ये ठीक रहता है। लीड की गिलिनाई दौर, जावर माइन जो बोला ना राजस्थान की, लीड ओनली एक जगह पे होता है, राजस्थान। जावर माइंस, जावर माइन इन राजस्थान प्रोड्यूसेस लीड, जावर माइन। Zinc is found in Udaipur, Rajsamand area of Udaipur only. Zinc you will find with this, zinc is with Udaipur, Motia Majra, something region is there, Udaipur of Rajasthan. ए रीजन में ही जिंक होता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, HZL है ना, जिंक लिमिटेड नियर जावर माइंस यू हैव हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। चित्तौड़गढ़ तक और मिलेगा। ये ओनली प्लेस वेयर यू हैव दिस टाइप ऑफ मिनरल्स। और क्या था आपका, मैंगनीज, व्हाट यू आस्क्ड अबाउट, आई थिंक मैंगनीज। कहीनूर डायमंड फाउंड फ्रॉम विच माइन, अरे भाई हैदराबाद पास गया है, बीजापुर रीजन, तेलंगाना, this was a different thing. Okay, we have another question somebody asked about, yes, about manganese. Manganese is found in which region? Manganese is used as an abrasive, as you know. For stainless steel we use this, ferroalloy के लिए होता है industry in India. They are generally found with the धारवाड़ रॉक, जो पुराना जो रॉक है ना धारवाड़ रॉक के साथ होते हैं मैंगनीज। मैंगनीज फाउंड विथ द धारवाड़ रॉक्स, धारवाड़ रॉक के साथ मिलता है ये, फाउंड विथ द धारवाड़ रॉक मोस्टली विथ दिस। मेजर एरिया में पहला सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट एरिया है मैंगनीज में मध्य प्रदेश है। लेट मी टेल यू, मोस्ट इंपोर्टेंट मैंगनीज बेल्ट इज इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र इट इज। मध्य प्रदेश, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा रीजन, MP, बालाघाट, छिंदवाड़ा, these are the regions here you have the largest deposit. And let me tell you, largest producer of manganese definitely it is Madhya Pradesh. अभी discovery of manganese we found even in Odisha. ओडिशा में बोनाई, कोरापुट, कलाहांडी regions you have. Odisha we have Bonaigarh, Koraput and huge area in Kalahandi who have deposit of manganese. माइनिंग नहीं हुआ है यहाँ पे, लेट मी टेल यू। ओडिशा में माइनिंग बहुत ही कम है मैंगनीज की, दैट्स व्हाई इट डजंट परफॉर्म वेल इवन। मध्य प्रदेश गुड माइनिंग इज मोर। महाराष्ट्र में भंडारा एंड रत्नागिरी एरिया, महाराष्ट्र में वन इज भंडारा
Second is Ratnagiri. Ratnagiri. Bhandara and Ratnagiri in Maharashtra are known for this mineral. Okay. Maharashtra. In Karnataka, you have deposit is there. Karnataka, Bellary, Shimoga, Chitradurga, Karnataka, Bellary, Shimoga, Chitradurga. So this is here is the region. This is the district where you have mostly will find this. Okay, sir, give us some details about lithium. Yes, that I will give you. Give us details about lithium, plutonium, uranium, others, rare element. Yes, that will have a separate one. Yes. Actual resource, potential resource, stock resource, please. See that what is there, what is the resources, what is deposit of resources. मतलब इन जनरल दो रिसोर्स होता है. एक्चुअल रिसोर्स इज प्रूवन, फैक्ट प्रूवन जो होता है. पोटेंशियल इज बेस्ड ऑन पोटेंशियल और स्टॉक में डिफरेंस है. पोटेंशियल में बेस्ड ऑन द रॉक टाइप वी कैलकुलेट दिस मच ऑफ रिसोर्स मस्ट बी देयर इन दैट रीजन. स्टॉक रिसोर्सेस इन दिस सेंस द प्रूवन वन बट विच इज नॉट एक्सप्लॉयटेड. सो ये सब में थोड़ा डिफरेंसेस है. सो यू रिमेंबर वन थिंग, डिपोजिट ऑलवेज यू टेक इनटू पोटेंशियल का ले जाते हैं हम लोग और रफली वी कैलकुलेटिव है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक एट मोस्टली सर्वेंट जो है ना एक्चुअल जाता है. फॉर एन एग्जाम्पल अर्लियर वी थॉट लाइक ओके लार्जेस्ट डिपोजिट ऑफ बॉक्साइट इज इन छत्तीसगढ़. पहले ये क्या था ना छत्तीसगढ़ में, पहले गुजरात में बताया, गुजरात से छत्तीसगढ़ आया. नाउ वी कैम इज इन ओडिशा. सो व्हेन यू आर डूइंग फॉर सर्वे प्रॉपरली, सो ये अर्लियर व्हाट हैपेंड, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ the rock type that we have. Subsequently the observation हुआ from after complete survey we got it like this much thickness is there and we got it. Like these are like there are differences of this in terms of the technical differences is there in these terms. Okay, these are the minerals as I just have mentioned. These are the minerals as you said about rare earth minerals. रेयर अर्थ मिनरल्स का हमें देखना पड़ेगा. व्हाट आर द वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा एक चीज है, यू माइट हैव सम आइडिया अबाउट निकेल. निकेल इन इंडिया only found in Odisha 93%, and second is in Jharkhand and 93% in Odisha only. Nickel, there are nickel you will find in Odisha only. You remember this is. Chromite is in Odisha only. Nickel 97% is in Odisha. Chromite 96% is in Odisha. डिपोजिट का भी है और प्रोड्यूसर भी लार्जेस्ट है ये. क्रोमाइट में सुकिंदा माइन है, बहुत ही सुकिंदा माइन. निकेल में आपके मयूरभंज रीजन्स यू हैव यूज डिपोजिट. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका. यस, वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका है इंडिया. ठीक है. Chromite in Jajpur regions, Keonjhar area, Dhenkanal area, 99% of the production. अच्छा, महाराष्ट्र के भंडारा से भी क्रोमाइट होता है. क्रोमाइट यू विल फाइंड इन भंडारा, महाराष्ट्र. ओडिशा है. भंडारा इन महाराष्ट्र. %3 तक है.
ये 96% बहुत ही कम करता है, बट भंडारा ऑल्सो देयर इज लाइक भंडारा में है। यहाँ पे सुकिंदा माइन इज बहुत ज़्यादा फेमस है इसके लिए। सी दैट ऑयल रिग का बात है, ये R12 लिखा है ना आपने, स्ट्रक्चर ऑफ फील्ड। रेयर अर्थ मिनरल्स, आई विल हैव ए डिस्कशन ऑन दैट, जस्ट वेट। सो रेयर अर्थ के ऊपर जो है ना, दैट इज न्यू डेटा आई एम कलेक्टिंग ऑन दैट, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस नाउ फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ओके, अभी आई एम डूइंग सम वर्क ऑन दैट वन, सो लेट मी सी, hopefully tomorrow in the first half I'll do that, rare earth का, rare earth and another one I told you, दो चीज है, something we will have the discussion on that one. Okay, fine, these are some of the important minerals I said, some of the very important minerals I told you about these minerals of India. इंडिया का जो मिनरल्स है उनमें से सब इम्पोर्टेंट कुछ बताया गया। नाउ आई विल गो फॉर वन थिंग हियर, माइनिंग सेक्शन में वी हैव सीन दैट द फैक्टर्स में गवर्नमेंट पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। गवर्नमेंट पॉलिसी हैज ए ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन एनी अदर थिंग्स इन माइनिंग, बिकॉज द माइनिंग इंडस्ट्री इन दैट द प्रेजेंट सिचुएशन, इफ विल सी, यू हैड ए प्रॉब्लम माइनिंग के, only because of the major cause behind this is like environmental consideration and so many things as per the interference from the government it was. Rare earth material, lithium and all these things, and oil production, I need to verify certain data, those which are I am having, so I just need some time on this, इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ अभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गेट क्वेश्चन इवन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, लेट मी नाउ मूव ऑन टू आफ्टर मिनरल। मिनरल में ये था, आई विल नाउ, जिप्सम क्या करोगे आप लेके यार, जिप्सम और कुछ चाहिए क्या, बोलो। डोलोमाइट, आजबेस्टस, क्या करेगा इतना सब। Someone is asking me, chromite, निकेल आर फाउंड इन व्हाट टाइप ऑफ। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें नाराज नहीं करेंगे। ये किसने पूछा है, जिप्सम, चलिए जिप्सम, ठीक है। Someone asked me about जिप्सम, कुछ लोग निकेल किस्म, चलिए ठीक है। जिप्सम आपको ये सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत काम में आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ऑल, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी आते हैं, इट इज ओके। सो 99% of the production is only from Rajasthan. Then you have Jammu and Kashmir also have this. In Rajasthan, it is found in the district of Nagaur. नागौर नाम सुना है, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, राजस्थान। नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये ड्राई एरिया जो है ना, ये पूरे ड्राई एरिया में आपको मिल रहा है जिप्सम। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा अलग है, श्री गंगानगर ऑल्सो हैव दिस टाइप, जिप्सम में ये सब है। और क्या पूछा आपने, जिप्सम में
you asked about डोलोमाइट। लाइमस्टोन और मैग्नीशियम मिल जाते हैं तो डोलोमाइट है। डोलोमाइट मिक्सचर ऑफ डोलोमाइट, it is a mixture of, I said, magnesium and limestone and magnesium. डोलोमाइट मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड मैग्नीशियम, उसको डोलोस्टोन भी कहा जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में छत्तीसगढ़ है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर छत्तीसगढ़। बिलासपुर एंड दुर्ग आर नोन फॉर दिस। छत्तीसगढ़, यहां पे बिलासपुर एंड दुर्ग, मैंने कहा द प्लेसेस नेम इज बिलासपुर, सेकेंड इज दुर्ग। ये रीजन है, बिलासपुर एंड दुर्ग रीजन, छत्तीसगढ़, बहुत ही फेमस है ये। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है हो जाता ना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कडप्पा, कर्नूल, अनंतपुर जो रीजन है ना, आंध्र प्रदेश, कडप्पा, कर्नूल, अनंतपुर, यही रीजन में मिलते हैं। थर्ड लार्जेस्ट है उड़ीसा। उड़ीसा थर्ड लार्जेस्ट आएगा डोलोमाइट में उड़ीसा। उड़ीसा में वीरमित्रपुर, एंड संबलपुर, वो है ओडिशा में ये रीजन है, संबलपुर, वीरमित्रपुर एरिया। और क्या लिखा है आपने? दिस टू ओनली और एनीथिंग एल्स? डोलोमाइट। Chromite, nickel are found in what type of rock? See that this is crystalline rock. Crystalline rock, mostly wherever you have crystalline of old rock, particularly Archean rock अगर होगा तो ये ठीक रहता है यहाँ पे क्रोमाइट के लिए। निकेल, प्री कैम्ब्रियन, यू नो इट। आजबेस्टस के बारे में आपने पूछा है। आजबेस्टस प्रोडक्शन में इनफैक्ट मिनरल में ये है द अजमेर, पाली, राजसमंद, अलवर, उदयपुर रीजन्स में है। ओके, राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आजबेस्टस। ओके, देखते हैं ये आजबेस्टस राजस्थान is known for this. पाली, बीकानेर, बारमेर, you have the regions of what you call अजमेर। अजमेर, आपको ये रीजन जो है ना, दिस रीजन्स यू हैव डिपॉजिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ आजबेस्टस। You have also Udaipur, you have also अलवर। अलवर, उदयपुर तो बहुत ही फेमस है। पाली, उदयपुर, अलवर, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजबेस्टस के लिए। दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसी रीजन्स पे, ये रीजन्स। Why India is still lacking? What are our sea exploration?
What about our sea exploration? Could you please show some light on this in current status? See that nowadays, after a while we got this, the Reliance has taken up in the eastern shore, KG Basin, Rava field. They are exploring that regions and we are finding, yes, it is, there are presence of petroleum from Sundarban up to, we are talking about the Kaveri Delta. This is what is our expected one. Shale gas also we found out in the ocean margin. And recently the work is going on, the exploration is going on, and it is the Reliance which is taken up this first. Why India is still lacking in semiconductor chip production? Is it due to the shortage of silicon production? Yes, silicon is the major cause for this. Without silicon, how will we be able to do this? Mineral policy of 2019. Private sector mining also got airline tax. See that these are, thank you very much for sharing this, whoever you may be. आप जो भी हैं अच्छा किए हैं, thank you very much. So mineral we have, yes, it is there, like we have some new initiative by government to promote again, to bring back that past where we have done very well earlier in mining and it is now going down, so we need to see. So rare earth material, and this one a discussion I will have. Let me do this. I am preparing on this, so wait for some time. And because there are certain things which is needed, some development is needed. पुराना जो है वो नहीं चाहिए, जो पहले last year जो कराए थे, बहुत सारे changes है अभी. At present time, lot of changes. I want to cover that expedition which you had in the Greenland. ग्रीनलैंड में हुआ है ना, दैट आई हैव टू रेयर अर्थ के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा हमें. एंड एज यू शेयर अबाउट द वर्ल्ड प्रोडक्शन, सम सर्टेन थिंग्स विल सी. ओके, सो आई विल गिव यू मे बी बाय टुमारो विल सी. सो लेट्स हैव ए ब्रेक नाउ. आफ्टर द ब्रेक आई विल गो फॉर फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, देन एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल अदर थिंग्स, फैक्टर्स के ऊपर एटलीस्ट देखेंगे, देन विल मूव ऑन. थैंक यू वेरी मच. लेट्स हैव ए ब्रेक नाउ. थैंक यू.